And bomb calorimeter is used for determination of gross energy, and that gross energy depends upon elemental composition of a particular element or other compound or feed ingredient. And this is a simple calculation. You must have studied that the quantity of heat produced depends upon, that is m, that is mass, h is a specific heat, and that is difference in temperature. And this bomb calorimeter works on this principle. Bomb calorimeters contains simply this. There is a hard bond structure, you can say a steel. This is known as bomb, and this bomb has provision to supply oxygen. And 1 gram of feed ingredient is kept here. This is being ignited with the help of thread, and this is burned. After burning, heat is being produced, and in this way, here you can see this is water, and water has a certain temperature before ignition and after ignition. Suppose temperature is 40 degree or 50 degree somewhere, but after burning 1 gram of that feed ingredient, certainly temperature will increase. That will be dealt with this one, that is delta T, or difference in temperature. And you know a specific heat of water, and you know what was the amount kept for burning, what was the amount kept for bomb calorimeter. So this is the heat produced by that particular amount of feed, and this is calculated as gross energy. So but gross energy is, again, it is feed specific, it is particular oriented, and it has no relation with this, animal body or animal system, because that is totally inherent part of, that is totally inherent intrinsic part of, or intrinsic attributes of or rather feed. Next is digestible energy. After feeding, if there is loss of energy in feces, then it is known as digestible energy. Digestible energy means gross energy minus fecal energy. In case of in any animal system, there is loss, there is a loss, or that you can say leakage, or there is excretion, and that excreted part also contains some energy, some ingredient, some feed particle, or some undigested feed. That feed energy is counted, and digestible energy is gross energy minus fecal energy. There is one term, apparent digestible energy. Apparent can be opposite of true. Apparent means जिसको कहते हैं कि आभास होता है. Apparent means whatever fecal energy you deduct, it seems that this is energy, which energy contain of energy of fecal. This means that the you assume that the energy is derived from that undigested feed particle, undigested feed. But in fact this fecal energy also contain undigested enzymes, some wear and tear of gastrointestinal tracts, and some microbial protein. So again, if we count for that energy which is not the true part of the fecal energy, then it comes to true digestible energy. So apparent digestible energy means fecal gross energy minus fecal energy. But in case of true digestible energy, fecal energy and only of feed origin, that is feed which is not digested, and that feed energy, if it is deducted, then it is true digestible energy. So there is a difference. Fecal energy has two parts, or that can be as two, that is apparent digestible energy, and another one is true digestible energy. Fecal energy सर please. सॉरी सर, ये फीकल मतलब एपरेंट और ट्रू डाइजेस्टेबल एनर्जी सर क्लियर नहीं हो रहा है. अपरेंट और ट्रू क्लियर नहीं हो रहा है. अपरेंट डाइजेस्टेबल यस एनर्जी, सर. अपरेंट डाइजेस्टेबल एनर्जी में क्या करते हैं कि फीकल एनर्जी पूरा का पूरा जो सम टोटल होता है, मान लो सपोज करो कि 2 kg आपने फीड खिलाया. 2 kg फीड खिलाने के बाद यस 500 ग्राम फिशेस बाहर आया, और पूरे के पूरे को आपने यस जला दिया, और उसके बाद जो एनर्जी आया उसको क्या कह दिया आपने, उसको क्या कह दिया, एपरेंट डाइजेस्टेबल. अपरेंट डाइजेस्टेबल. एपरेंट अब उस फिकल एनर्जी में क्या होता है कि सब उसमें 2-3 पार्ट है. पहला है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो है. दूसरा कंपोनेंट आप मान लो कि उसमें क्या है, जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा आया है ना,
तो म्यूकोसा का भी पार्ट है, उसका भी एनर्जी है। तीसरा जो अनडाइजेस्टेड एंजाइम है वो भी है। चौथा जो माइक्रोबियल माइक्रोब्स हैं वो है। तो इस फीकल में क्या क्या चीज आ गए? 4 आ गए। पहला अनडाइजेस्टेड पार्ट, जिसको कि आप यस फीकल सर। ट्रू में आप उसको फीकल कहते हो। लेकिन उसके साथ साथ और यस। क्या है? जो म्यूकोसा आ गए, अनडाइजेस्टेड एंजाइम्स आ गए और माइक्रोब्स आ गए। तो ये जो फीकल एनर्जी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, छोटा, इसको छोटा करता हूँ मैं यहाँ पे शायद। यस सर, समझ गई। इसमें सिर्फ जो फीड का अनडाइजेस्टेड फीड का एनर्जी माइनस करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल अनडाइजेस्टेड। तो अनडाइजेस्टेड फीड समझ। का एनर्जी माइनस कैसे होगा? इसके लिए माइनस करने के लिए क्या करना होगा? मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे शायद छुप रहा है। पता नहीं ये कहाँ है, फॉर्मूला यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी। अब इस फीकल एनर्जी में से क्या करते हैं? माइनस एनर्जी ऑफ अनडाइजेस्टेड एंजाइम्स, एनर्जी ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, तो ये जब माइनस कर लेते हैं तब वो क्या आ जाता है? ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। हाँ, यानी कि इस यस फीकल सर। एनर्जी, इसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, आपको यहीं पे फॉर्मूला लिखता हूँ, समझ में आ जाए। इससे ट्रू में क्या होगा? आपने दिख रहा है ये, या ऊपर लिखता हूँ? जी, इसको एक टर्म बोलते हैं जो आगे हम लोग बात करेंगे, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन। ये टर्म अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था कि कंफ्यूज कर जाओगे। एक टर्म क्या बताया हमने? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन। दिस मीन दिस मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंजाइम, म्यूकोसा और माइक्रोबियल प्रोटीन। तो अब ये पूरा का पूरा फीकल एनर्जी था। सपोज करो कि इस फीकल एनर्जी में आपने कहा कि पूरा के पूरा आपको, आपने उसको बर्न कर दिया। तो बर्न करने के बाद सपोज करो कि इसमें 30 कैलोरी आ गया। तो इस 30 कैलोरी में क्या क्या था शामिल? सपोज करो कि 10 कैलोरी या 20 कैलोरी था फीसेस का, इसमें से फिर 5 कैलोरी था, 5 कैलोरी था जो म्यूकोसा का। तो ये जो हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अब केवल और क्या रहने दिया? ये जो 20 में से हमने जो 5 माइनस किया, 20 में से जो 5 माइनस किया हमने, ये क्या हो गया? केवल और केवल फीसेस का आ गया। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी। एम आई यस क्लियर? सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। Now fecal energy is variable, depends upon animal feeds. How? If a feed is highly digestible, then fecal energy will be low. If a feed is very low digestible, then fecal energy will be of higher and digestible energy will be vice versa, or rather reciprocal of that fecal energy. Higher the fecal energy, lower will be digestible energy. Again, in other class you will be learning there is a interrelationship between TDN and TDN. That is, TDN is total digestible energy. But for objective, DE varies with gross energy. If higher the gross energy, there is a possibility of higher the digestible energy. Again, if the digestibility of feed is very low, then it can lead to decrease in digestibility of digestible energy of a particular feed. Now come to metabolizable energy. If energy from urinary or urine is deducted, then we come at metabolizable energy. Again, डाइजेस्टिबल एनर्जी से अगर हमने यूरिनरी लॉस को निकाल दिया, देन इट इज एनर्जी ऑफ यूरिनरी एनर्जी, एंड यूरिनरी को माइनस कर देते हैं अगर डाइजेस्टिबल एनर्जी से, तो वो क्या होता है? मेटाबोलाइजिबिलिटी। एक टर्म और आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करो, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिबिलिटी एंड मेटाबोलाइजिबिलिटी। मेटाबॉलिज्म आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, फिजियोलॉजी में पढ़ा, उसको बिल्कुल रिफाइंड टर्म में पढ़ा। न्यूट्रिशन के लिए समझने की कोशिश करो कि आपके पास एक ट्रायल होता है जो बाद में हम पढ़ाएंगे। वन इज डाइजेस्टिबिलिटी, अनदर इज मेटाबोलाइजिबिलिटी। तो अगर हम डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो उसमें आप केवल और केवल फीकल के साथ जो भी पैरामीटर्स डील होते हैं वहां से आप माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा क्या? डाइजेस्टिबिलिटी।
और उस फीकल के साथ साथ अगर यूरिनरी को भी शामिल कर लेते हो और वो माइनस कर देते हो, देन इट विल बी मेटाबोलाइजिबिलिटी। क्लियर है? डाइजेस्टिबिलिटी और मेटाबोलाइजिबिलिटी में हमारे लिए क्या फर्क है कि अगर केवल डाइजेस्टिबिलिटी को आपने माइनस कर दिया, यानी कि फीसेस को माइनस कर दिया, तो वो हो गया डाइजेस्टिबिलिटी, और उस क्रॉस एनर्जी में से डाइजेस्टिबिलिटी ग्रॉस एनर्जी में से आपने फीसेस को भी माइनस कर दिया, फिकल एनर्जी को भी माइनस कर दिया और यूरिनरी एनर्जी को भी माइनस कर दिया, देन इट कम्स टू मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। क्लियर है? यस सर। नो, इसको भी छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। अब आ जाइए कि यहाँ भी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी में भी जो एक टर्म आता है, इस पे ज्यादा आप नहीं फोकस करना, कि गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इन केस ऑफ रूमिनेंट आप जानते हो कि डाइजेस्टिबिलिटी के दौरान कुछ और चीजें निकल के बाहर आती है, दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लॉस होता है। तो इन केस ऑफ रूमिनेंट ये जो मेटाबोलाइजेबिलिटी एनर्जी क्या निकाला, इसमें से डाइजेस्टेबल एनर्जी में से फीकल एनर्जी माइनस कर लिया, उसके बाद यूरिनरी में एनर्जी माइनस कर दिया, और एक और टर्म निकाल लिया जिसको कहते हैं ग्रॉस या गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कहने का मतलब कि सपोज करो कि पूरे दिन के एक्टिविटी में या डाइजेशन एक्सपेरिमेंट में या ऐसे भी किसी भी तरह से आप अगर काउंट कर लो, तो आपको लगता है कि मीथेन, सपोज करो कि 10 लीटर मीथेन निकले, तो 10 लीटर मीथेन निकले तो उसका भी कुछ एनर्जी होगा, वो भी एनर्जी को कहीं लॉस करा रहा है। तो यहाँ पे हम उस गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को भी लॉस में दिखा देते हैं, एंड देन इट कम्स टू मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, whereas this gaseous product of digestion is very less in case of monogastric animal, in case of poultry, in case of pig, this is on lower side, but in case of ruminant this is on higher side। तो अगर मैं बात करूं कि एक ही फीड है और इस फीड का मेटाबोलाइजिबिलिटी या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी किस में ज्यादा होगा, पिग में ज्यादा होगा कि कैटल में ज्यादा होगा? पिग में ज्यादा होगा, पिग में सर। बिकॉज गैसेस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज लो। ठीक है। एक सर एक क्वेश्चन सर, जैसे आप इससे पहले थोड़ा बताया कि डाइजेस्टेबल एनर्जी जब निकालते हैं तो ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी करेंगे तो डाइजेस्टेबल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है। और फिर आपने मेटाबोलाइज एनर्जी के बारे में बताया कि ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी, तो मेटाबोलाइज एनर्जी निकल जाएगा। तो सर तो फिर एक और फॉर्मूला आ गया मेटाबोलाइज एनर्जी का, जिसमें हम लोग डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी और जीपीडी। थैंक यू वेरी समझ मच, में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, दिस इज मिस्टेक, दिस इज जी। ओके, किसने कहा? आसिफी कायनात। यस सर, मैंने। थैंक यू, यू विल गेट बोनस फॉर दिस वन। सो दिस इज जी नॉट डी। अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया सबको? यस सर। कैसे कैसे अब कैसे होगा? अब देखिए, इसको हम अगर यहाँ माइनस कर देंगे, ये वाला टर्म क्या आ गया, इसको आप क्या कह सकते हैं? दिस इज डी, दिस इज डाइजेस्टेबल एनर्जी। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन डी हो गया माइनस यूरिनरी एनर्जी। ठीक है, अब क्लियर है? तो वहां से शुरुआत होने के लिए पहला फॉर्मूला क्या होगा? डी माइनस यूरिनरी एनर्जी, और इस डी को जब हमने एक्सपेंड किया देन इट इज जी माइनस एफ। क्लियर है? अब कई बार आपको ये जीपीडी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जनरली रूमिनेंट में होता है, तो उसको जनरलाइज लोग नहीं दिखाते। क्लियर है? देयर इज वन क्वेश्चन इन पोल्ट्री, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इज मोर इजीली देन डाइजेस्टेबल एनर्जी। ये जवाब भी लिखा ही हुआ है। एक रीजनिंग पूछा जाता है और कभी भी पूछा जाएगा कि हर एक एनिमल के लिए अलग अलग हमने नोटेशन रखते हैं। क्रॉस एनर्जी किसी का यूज नहीं करते, किसी में हम क्या करेंगे, डी रखते हैं, किसी में एम रखते हैं, किसी में एन रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि इन केस ऑफ पोल्ट्री हम मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डाइजेस्टेबल एनर्जी। व्हाई? Sir, because metabolizable energy is measured more easily than D, because feces and urine are voided together through. इसको आपने पढ़ लिया, समझ गया कि नहीं एवरीवन? अब क्या है कि जब जैसे आप यहीं से समझने की कोशिश करो,
अगर डाइजेस्टिबल एनर्जी निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ग्रॉस एनर्जी में से फिशेस एनर्जी को निकाल देंगे। लेकिन मेटाबोलाइजेबल एनर्जी निकालना होगा तो क्या होगा, उसमें ग्रॉस एनर्जी प्लस फीकल एनर्जी। तो अब चूंकि इन केस ऑफ पोल्ट्री एक ही ओपनिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, क्लोक। वेरी गुड, उसको कहते हैं क्लोका। और क्लोका से जो डाइजेस्टेबल पार्ट्स निकलते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है, फीकल भी होता है और फीसेस भी होता है, यूरिनरी भी होगा सर। हाँ। तो आप नॉर्मल यूरिन कंडीशन भी में नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने एक्सक्रीटा को काउंट किया या उसको निकाला, उसको बर्न किया, तो आपके साथ साथ क्या किया, क्या एक साथ चली आएगी, फीकल भी आ जाएगी और यूरिनरी भी आ जाएगी। और जब दोनों को माइनस कर देंगे तो सीधा क्या निकल जाएगा, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी हो जाएगा। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। This is the reason in case of poultry मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इज इजीली मेजर्ड। क्योंकि दोनों एक साथ आ जा रहा है, आपको पता नहीं करना है कि ग्रॉस एनर्जी फिकल एनर्जी कितना है और यूनिटी है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि इन केस ऑफ पोल्ट्री व्हिच वन इज द प्रिफर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब मैं एक आगे सवाल पूछता हूं कि अब मुझे मन कर रहा है कि नहीं मैं इसकी डाइजेस्टेबल एनर्जी निकालूं, क्या करूं, एनीवन। ये तो ठीक है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी आपने निकाल लिया, बड़ा आसान है निकालना क्योंकि दोनों साथ आ रहा है और दोनों में एक साथ मिल गए। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं अब मुझे डाइजेस्टेबल एनर्जी निकालना है, क्या करेंगे, ग्रॉस एनर्जी और सोचिए। तो सर उसमें डी निकालने के लिए सिर्फ तो फीकल एनर्जी चाहिए और योगा के थ्रू यूरिन भी आ रहा है, तो यूरिन को माइनस करना होगा। ऐसे करेंगे, ये पूछ रहा हूँ। पजामा में बाबू जा गया, ठीक है, पजामा में यार मास्क चला गया। ठीक है, इसको सोचिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा, ये बताइएगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप डाइजेस्टेबल एनर्जी निकाल लें, मेटाबोलाइजेबल ना निकाल के डाइजेस्टेबल निकालें। तो अप्रोच सही है जिसने भी जवाब दिया है, बट हाउ। नेक्स्ट टर्म इज हीट इंक्रीमेंट ऑफ फीड। हीट इंक्रीमेंट ऑफ फीड जिसको कि आप एसडीए भी कहते हैं, है ना, स्पेसिफिक डायनामिक एक्टिविटी। और हमने पहले भी चर्चा किया कि अगर आपके पास फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, तो सबसे इजीली जो है डाइजेस्टेबल, या यूं कह लो कि सबसे कम लॉस जो होता है वो किसका है, फैट का है। इसलिए एसडीए इज मिनिमम इन केस ऑफ फैट एंड हाईएस्ट इन केस ऑफ प्रोटीन। तो कह रहा है कि हीट इंक्रीमेंट क्या है, हीट इंक्रीमेंट इज द एनर्जी एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन में कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता है, जिसको कि हम हीट इंक्रीमेंट ऑफ फीड कहते हैं, और इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग भी कहते हैं। ठीक है। और भी दूसरा नाम है, इसको कहते हैं डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस और मील इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। मोटी मोटी आप बात ये समझिए कि एक फीड के डाइजेशन में जो एनर्जी खर्च हुआ, जो कि मेटाबॉलिज्म है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा है कि उसके एसिमुलेशन तक में कहीं ना कहीं एनर्जी का भी कुछ ना कुछ लॉस होता है, उसके डाइजेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके यूटिलाइजेशन में। तो जो हीट उस फीड के डाइजेशन में हो रहा है उसी को क्या कहते हैं हम, हीट इंक्रीमेंट। ओके। अब हीट इंक्रीमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं हीट ऑफ फर्मेंटेशन और एक को कहते हैं न्यूट्रिएंट, हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। इसको जल्दी खत्म करूंगा। हीट ऑफ फर्मेंटेशन, पहले हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को, ये जितना भी पार्ट आपने डाइजेशन, एसिमुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब किस में आ गया, मेटाबॉलिज्म में आ गया। तो इस तरह का जो चीज होगा उसको क्या कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी खर्च हुआ वो। अब इन केस ऑफ रूमिनेंट आप जानते हो कि फर्मेंटेशन भी होता है। सपोज करो कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट विल फर्मेंटेड टू वोलेटाइल फैटी एसिड। अब वो वोलेटाइल फैटी एसिड जाके एनर्जी देगा, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस और प्लस होता है। तो इन केस ऑफ रूमिनेंट जो एक और टर्म हो जाता है उसको कहते हैं हीट ऑफ फर्मेंटेशन। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ फर्मेंटेशन। बट इन केस ऑफ नॉन रूमिनेंट, इन केस ऑफ पोल्ट्री, इन केस ऑफ पिग, हीट ऑफ फर्मेंटेशन जो होगा वो मिनिमम होगा, इसलिए उसमें उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जितने भी फर्मेंटेटिव नेचर के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल हैं उसमें हीट ऑफ फर्मेंटेशन ज्यादा होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि HI इज इक्वल टू व्हाट, HI आती है, हीट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हीट ऑफ फर्मेंटेशन प्लस हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, ठीक है। या अगर हमने हीट ऑफ फर्मेंटेशन बोल दिया तो क्या करोगे आप, HI माइनस HNM। क्लियर है, ठीक हो गया कि ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, HI। क्लियर है। अब
ये जो नेट एनर्जी होता है, सर नेट सर एनर्जी, बोलो। सर हीट ऑफ इंक्रीमेंट को स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन क्यों बोलते हैं? कहते हैं हीट ऑफ इंक्रीमेंट को ही स्पेसिफिक डायनामिक क्यों? एक्टिविटी या एसडीए बोलते हैं, एसडीई भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर लिटरल टर्म्स। क्यों बोलते हैं सर, कोई क्यों बोलते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन? क्योंकि वो पार्टिकुलर, वो किसी फीड के लिए होता है ना, या किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसका अलग है, प्रोटीन है तो उसका अलग है, फैट है तो उसका अलग है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एसडीए, डायनामिक हीट, कि उसके मेटाबॉलिज्म में पूरा का पूरा जितना खर्च हो रहा है वो स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट के बराबर फैट हो जाएगा, फैट के बराबर प्रोटीन हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज एसडीए। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब जो एक हमारे पास लास्ट एनर्जी का टर्मिनोलॉजी है, दैट इज नेट एनर्जी। नेट एनर्जी, नेट एनर्जी को कैसे निकालते हैं? ME माइनस, एम ई माइनस एच आई। यानी कि पूरी एक न्यूट्रिएंट जो कि एलिमेंटल से शुरू किया था, उसके जितने सारे लॉस हैं सबको हमने काउंट कर लिया, और जो कुछ भी बच गया दैट इज नेट एनर्जी। और अब इसी को अगर आप एक्सपेंड करना चाहोगे तो NE को आप सीधा सीधी G से शुरू करते हो। NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G माइनस फीकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस गैसेस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन माइनस हीट इंक्रीमेंट। अच्छा, इसमें चार के चार जो हैं पूरे के पूरे लॉसेस आ गए, और जो कुछ भी बच गया दैट इज नेट एनर्जी। एंड दैट नेट एनर्जी वाज गिवन बाय बाय, इन्होंने ही पहली बार टर्म किया था नेट एनर्जी का। एंड दिस इज नेट एनर्जी इज दिस इज द एनर्जी व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय, या समझो कि बचा हुआ जो है आपके पास, जो लास्ट का चीज बचा हुआ है जो कि यूटिलाइजेबल फॉर्म में है, सो दिस इज द एनर्जी व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनिमल। ठीक है, अब ये जो नेट एनर्जी हुआ, अब इसका भी डायनामिक्स है कि आगे जाके क्या क्या होगा, इसके कहां कहां यूज होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, दिस नेट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। एज पर एग्जांपल, एक एनिमल है जो कि ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या होगा, या यूं समझ लो कि एक एनिमल है जो कि ना तो ग्रो कर रहा है ना लॉस कर रहा है, एक आइडियल सिचुएशन में, तो उसको भी कहीं ना कहीं बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो एक बेसल चीजें होती है वो करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा, उसको कहते हैं नेट एनर्जी ऑफ मेंटेनेंस, जिसको कि आप NEM की तरह दिखा सकते हैं। दूसरा होता है नेट एनर्जी ऑफ फॉर गेन, अगर कोई ग्रोथ हो रहा है एनिमल का तो उसको क्या कहते हैं? NEG। लैक्टेशन हो रहा है तो NEL, या वूल का प्रोडक्शन हो रहा है तो NEW, या यूं कह लो कि फिर एग का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए अलग। तो यानी कि इसको कहते हैं, बाद में आप कभी मौका मिलेगा तो पढ़ना, कि पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का भी जो पार्टीशनिंग होता है, या यूं कह लो कि उसकी जो फ्लो होता है, चॉइस होता है, वो डिपेंड करता है एनिमल के एक्टिविटी पे। कई बार ऐसा होता है कि एनिमल मेंटेन तो हो गया लेकिन ग्रोथ में ना जाकर उसका कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो ये फेवर होता है उसके बॉडी का। जैसे सपोज करो एक इन केस ऑफ मिल्किंग, कि मिल्किंग भी है और फीटस भी है। सपोज करो कि एक काउ है जो प्रेग्नेंट भी है, उसके बाद मिल्किंग में भी है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? उस एनर्जी की प्रायोरिटी क्या होगी? मिल्क के लिए होगी कि अपने वॉर्म के लिए होगी, किड के लिए होगी? मिल्क किड के लिए। तो ये जो है बाद में पार्टीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। और आप चाहते हो कि किसी एनिमल को हम ग्रोथ कराएं लेकिन मेंटेनेंस एनर्जी कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा? पहले वो मेंटेनेंस में चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नेट एनर्जी। मैं इसको फिर से एक बार, ये जो है याद हो जाएगा आपको, इतना दिन 2 दिन हो गए समझ में, फिर से इसको समझ लो, याद हो जाएगा। ग्रॉस एनर्जी में से माइनस कर दिया फीकल एनर्जी, तो क्या बन गया? डाइजेस्टिबल एनर्जी। सब ध्यान से इसको देख लेना, याद हो जाएगा। GFE कर दिया तो डाइजेस्टिबल एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी से यूरिनरी एनर्जी और गैसियस एनर्जी को लॉस करा दिया, GPD जिसको आप कहा तो मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी। और मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी को अगर आपने में से हीट इंक्रीमेंट लॉस कर दिया, देन इट इज नेट एनर्जी। और नेट एनर्जी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मेंटेनेंस एनर्जी और प्रोडक्शन एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्शन एनर्जी अकेला हो ही नहीं सकता, अकेला प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। आप अगर 5000 कैलोरी दे रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट किस में चला जाएगा? मेंटेनेंस एनर्जी में चला जाएगा। बट उसके बाद जो बचा हुआ चीज होगा वो प्रोडक्शन एनर्जी में हो जाएगा। और ये जो डायनामिक्स होता है ये एनिमल स्पेसिफिक होता है, कि
किस एनर्जी को किस रूप में चैनलाइज करना है। प्रायोरिटी होती है, एनिमल होती है। अब मान लो कि सपोज करो आपने बहुत देर से फास्ट किया हुआ है, तो पहला चीज क्या होगा कि आप दौड़ना चाहोगे तो नहीं दौड़ पाओगे। पहला क्या करेगा, एनिमल अपने बॉडी को या ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी है उसको रिटेन करेगा। ठीक है, अभी तक में कोई कंफ्यूजन है? ये पूरा चार्ट है, पूछिए। कोई कंफ्यूजन? नो सर। दिस वाज ऑल अबाउट पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी, इन डिटेल बताया, और इससे बहुत सारे सवाल रहेंगे, डिफरेंट वे में रहेंगे, और जितने भी प्रोबेबल सवाल थे वो मैंने पूछ दिए। एक सवाल जो पूछा था, किसी ने अभी तक नहीं भेजा मुझे, मैं बताया कि व्हाई ग्रॉस एनर्जी ऑफ फैट इज 2.25 टाइम्स हायर देन कार्बोहाइड्रेट। स्टिल आई एम अवेटिंग जो आंसर, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो 3 चीजें। सर दूसरा सवाल जो मैं अभी छोड़ के जा रहा हूं कि ये माना जाता है कि जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये कि पर केजी मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें उसमें एनर्जी कम खर्च होगा अगर एनिमल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। यस, यूं समझ लो कि एक 5 लीटर दूध दे रही है और एक 20 लीटर दूध दे रही है, तो 5 लीटर दूध देने के लिए भी कुछ एनर्जी खर्च होगा। तो सपोज करो कि वहां पे 100 किलो कैलोरी पर केजी मिल्क लग रहा है, तो जो 20 लीटर मिल्क दे रही है हो सकता है उसको 60 किलो कैलोरी पर केजी मिल्क लग रहा होगा। तो ये जो 100 और 60 का फर्क है वो क्यों है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो तो अलग है कि 2 तरह के एनिमल हैं और उस दोनों एनिमल में एक हाई ग्रोथ के लिए या यूं कह लो कि हाई यील्डर्स हैं, तो उसमें जो पर केजी एनर्जी इनपुट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जो लो प्रोड्यूसिंग होते हैं। अगर ऐसा है क्यों? कोई सवाल? सर आपने एक्चुअली क्या कहा कि अगर कोई 5 किलो मिल्क दे रही है और फिर कोई 20 किलो दे रही है, तो जो 5 किलो दे रही है उसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी लग रहा है मिल्क प्रोड्यूस करने में। नहीं और जो 20 किलो नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एनर्जी तो ज्यादा लगेगा जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन पर यूनिट, यस सर, पर यूनिट हाई एनर्जी 20 लीटर वाले का तो ज्यादा एनर्जी लगना ही लगना है, लेकिन अगर पर केजी आप काउंट करोगे तो आपको हाई एनर्जी वाले हाई यील्डर्स के कम लगेंगे एज कंपेयर टू जो लो यील्डर्स है। अब क्लियर हुआ? तो मतलब सर मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी मिल्क प्रोड्यूस करने में वो बराबर लगेगा, इक्वल लगेगा, तभी तो पर यूनिट कम वाले का ज्यादा होगा और ज्यादा वाले नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर कैसे हो जाएगा? वही तो क्यों? नहीं, अगर मान लो कि 3000 लगा 20 लीटर के लिए, तो कितने हो गए? 150 हो गया। और यहाँ पे कह रहा हूँ, यस सर, यहाँ पे कह रहा हूँ कि 3000 में 5 लीटर हो गए, तो कितना हो गया? 3000 में 5 होंगे तो यहाँ पे 600 हो गए। या 2000 में 5 होंगे तो यहाँ पर भी आपको 44 हो गए। तो कहाँ 100 और कहाँ 400? इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज लास्ट, ठीक। वाइब्रेट